Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to our channel Habib Sir Classes. In this video, we'll be discussing Unit 4, Chapter 5, Admission of a Partner, Practical Problems. Here is the question, page number 239, question number 2. Amar and Akbar are partners sharing profit and losses in ratio of 4:3 respectively. कौन कौन है पार्टनर्स? अमर और अकबर. ये लोगों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है? 4:3. 4 + 3 क्या होते हैं? 7. जो भी अमाउंट बांटना है उसके 7 हिस्से होंगे, जिसमें 4 हिस्से अमर के रहेंगे, 3 हिस्से अकबर के रहेंगे. Whatever is the amount is to be distributed, it will be divided into 7 shares, of which 4 shares belongs to Amar, 3 shares belongs to Akbar. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as under. वो लोगों की बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 में ये है, कुछ लायबिलिटीज है, कुछ एसेट्स है. On the above date, Anthony was admitted into partnership for 1/4 share in future profits on the following conditions. तो उस दिन क्या कर रहे, अमर और अकबर मिलके एंथनी को एज ए न्यू पार्टनर ले रहे. क्या बोल के ले रहे? फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, मतलब आगे फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें से एक हिस्सा एंथनी को देंगे. 4 हिस्सों में एक हिस्सा एंथनी को देंगे बोल के ले रहे. तो नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आता, वो बंदा अपने साथ क्या क्या लेके आना? कैपिटल और गुडविल. यहाँ एंथनी शुड ब्रिंग 35,000 टूवर्ड्स कैपिटल एंड 28,000 टूवर्ड्स गुडविल इन कैश. तो नया बंदा अपने साथ 35,000 कैपिटल के पैसे ला रहा, 28,000 गुडविल के पैसे ला रहा. नेक्स्ट, लैंड टू बी वैल्यूड एट 20, machinery valued at 23, stock be depreciated by 10%, provide for bad debts 1,300. तो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स किस किस पे है? लैंड, मशीनरी, स्टॉक, डेप्टार्स. लैंड, मशीनरी, स्टॉक, डेप्टार्स. प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, लेडजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म. सो इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? लेडजर अकाउंट्स डिस्कस करेंगे, न्यू बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे. सो वी आर नॉट डिस्कसिंग जनरल एंट्रीज इन दिस वीडियो. तो हाउ मेनी लेडजर अकाउंट्स वी प्रिपेयर? रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट. ये क्वेश्चन में देख के लिखना. अगर क्वेश्चन में कैश दिया हुआ है तो कैश अकाउंट लिखना, बैंक दिया हुआ है तो बैंक अकाउंट लिखना. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट and new balance sheet. The format for revaluation cash and goodwill account is date particulars JF amount rupees, date particulars JF amount rupees. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit. Or simply we can draw the format as particulars amount rupees, particulars amount rupees. And the format for partners capital account is particulars along with the name of the partners. Particulars Amar amount rupees, Akbar amount rupees, Anthony amount rupees. Particulars amount Amar amount rupees, Akbar amount rupees, Anthony amount rupees. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit, and the name of the account will be taken as partners capital account. Then the heading for new balance sheet will be new balance sheet of Amar, Akbar and Anthony as on 1st April 2020, and the format will be liabilities amount rupees, assets amount rupees. What are the rules for preparing revaluation account? Decrease in value of asset will be recorded on debit side of revaluation account. Increase in value of asset will be shown on credit side of revaluation account. So हम यहाँ पे चेक करेंगे. लैंड टू बी वैल्यूड एट 20,000. ऊपर लैंड जमीन की वैल्यू क्या है? 15,000 है. उसको कितना करो बोल रहा? 20,000 करो बोल रहा. So the value of land is been increased by 5,000. तो ये appreciation है. So increase in the value of asset will be shown on credit side of revaluation. यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे भाई लैंड अकाउंट 15,000 से 20,000 हो रहा, मतलब 5,000 बढ़ रहा. इसको नई बैलेंस शीट में कैसा बताएंगे? एसेट्स में लिखेंगे लैंड इट वाज 15,000 प्लस अप्रिसिएशन 5,000. सो 15 + 5 इट बिकेम 20,000. देन लैंड के बाद सेकंड एडजस्टमेंट क्या है? मशीनरी भी वैल्यूड है 23,000. ऊपर एसेट्स में चेक करिए, मशीनरी कितना था? 25,000. 25,000 की मशीनरी की वैल्यू क्या हो जा रही? 23,000 हो जा रही. सो इट इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट. इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एज टू मशीनरी अकाउंट. 25,000 थी, 23,000 हो गई, 2,000 कम हो गए. सो दिस विल बी शोन इन बैलेंस शीट एज मशीनरी 25,000 minus depreciation 2,000. 25 minus 2 it becomes 23,000. देन मशीनरी के बाद तीसरा एडजस्टमेंट किस पे है? स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. डेप्रिशिएटेड मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही. स्टॉक वैल्यू इज गिवन एज 24,000. 10% ऑफ 24,000 इज 2,400. हाउ टू कैलकुलेट 10%? जितने भी अवेलेबल नंबर ऑफ जीरोस है उसमें से एक जीरो कम कर देना है. 24,000 में 3 जीरो रहते, तो 10% के लिए एक जीरो कम कर दिए तो 2,400. So there is decrease in value of asset which will be shown on debit side of revaluation account as
टू स्टॉक अकाउंट 24,000 इंटू 10/100 विच इज 2,400। इसको बैलेंस शीट में कैसा बताएंगे? असेट्स में लिखेंगे स्टॉक 24,000 माइनस डेप्रिसिएशन 10% 2,400, 24 माइनस 2 22,000 माइनस 400 21,600। देन स्टॉक के बाद एक और एडजस्टमेंट है, प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स 1300। सो डेप्टार्स की वैल्यू कितना है? 28,000। तो अपने को जो 28,000 रुपए आना है, इसमें से 1,300 रुपए डूब जा रही है बोल के बता रहा। So again it is decrease in the value of asset which will be shown on debit side of revaluation account as two bad debts 1,300। इसको हम बैलेंस शीट में कैसा लिखेंगे? असेट्स में बताएंगे डेप्टार्स 28,000 आना था माइनस बैड डेट्स 1,300 रुपए डूब गए, 28 माइनस 127 माइनस 300 26,700। Now balancing revaluation account. The total on debit side of revaluation account is 2 plus 2 4, 4 plus 1 5,000, 5,700, whereas the total on credit side of revaluation account is 5,000। तो हमेशा क्या हो रहा था? प्रॉब्लम नंबर 5, 6, 4 में रिवैल्यूएशन में 5 और 6 में क्या हुआ था? रिवैल्यूएशन में क्रेडिट का टोटल ज्यादा आया, डेबिट का कम आया। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या हुआ था? दोनों तरफ रिवैल्यूएशन का टोटल सेम आया। सेकंड प्रॉब्लम में क्या हो रहा है? रिवैल्यूएशन में डेबिट का टोटल 5,700 है, क्रेडिट का टोटल 5,000 है। तो पहली बार रिवैल्यूएशन में डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है। तब क्या करेंगे हम? जो हाईएस्ट टोटल है वो दोनों तरफ तो लिखेंगे। 5,700 विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, 5,700 विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। अब ये 5,700 में से 5,000 निकाल दिए तो 700 का लॉस हो रहा। हमेशा क्या होता था? क्रेडिट का टोटल ज्यादा रहता था, डेबिट का टोटल कम रहता था, जिसकी वजह से रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आता था। बट दिस टाइम द टोटल ऑन डेबिट साइड इज मोर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, सो वी आर सफरिंग लॉस। कितने का लॉस हो रहा? 5,700 में से 5,000 निकाल दिए, 700 का लॉस हो रहा। सो दिस लॉस विल बी शेयर्ड अमॉन्ग अमर एंड अकबर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो 700 इंटू ये लोगों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:3। 4 प्लस 3 इट बिकम्स 7, तो 4/7। तो 700 के 7 हिस्से करे तो एक हिस्सा 100 रुपए का आता। तो अमर के 4 हिस्से है तो अमर का शेयर क्या रहेगा? 400। अकबर के 3 हिस्से है तो अकबर का शेयर क्या रहेगा? 300। 700 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7, 300। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेकंड अकाउंट दैट वी प्रिपेयर? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों? इट इज एन एसेट, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। तो जैसे ही कैश अकाउंट में या बैंक अकाउंट में टू बैलेंस बी/डी लिख देंगे, जब पार्टनर्स कैपिटल में जाके क्या लिखना है? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों? इट इज ए लायबिलिटी, ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। तो अब यहाँ पे कैश में जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखे, इसका अमाउंट हम क्वेश्चन में कहाँ देखेंगे? असेट्स में देखेंगे, कैश के नाम से देखेंगे या बैंक के नाम से देखेंगे। सो हियर ऑन असेट साइड इट इज गिवन एज कैश 5,000। सो दिस विल बी शोन इन कैश अकाउंट एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। इसका मतलब क्या? नया बंदा जिस दिन बिजनेस में आ रहा, उस दिन पुराने पार्टनर्स के पास 5,000 रुपए कैश है। फिर पार्टनर्स कैपिटल में हम क्या लिखे थे? सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखे थे। तो इसका मतलब इसका अमाउंट कहाँ देखेंगे? क्वेश्चन के लायबिलिटीज में कैपिटल के नाम से देखेंगे। क्वेश्चन के लायबिलिटीज में अमर कैपिटल 40,000, अकबर कैपिटल 30,000। इसका मतलब क्या? पहले तो पार्टनर्स कैपिटल में लिख देंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमर के अकाउंट में 40,000, अकबर के उसमें 30,000। इसका मतलब जब अमर और अकबर बिजनेस स्टार्ट करे थे, अमर हैज इन्वेस्टेड 40,000, अकबर हैज इन्वेस्टेड 30,000। कमिंग टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखे? टू बैलेंस बी/डी 5,000। अब कैश अकाउंट का रूल क्या है? पैसे आ रहे डेबिट में लिखना, पैसे जा रहे क्रेडिट में लिखना। सो नया बंदा बिजनेस में आते वक्त अपने साथ कैपिटल के पैसे लाता और गुडविल के पैसे लाता। तो एंथोनी अपने साथ 35,000 कैपिटल के पैसे ला रहे और 28,000 गुडविल के पैसे ला रहे। तो पैसे आ रहे, सो इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट एज टू एंथोनी कैपिटल अकाउंट 35,000 टू गुडविल अकाउंट 28,000। तो पहले से कितने थे? 5,000। कैपिटल के 35 आ गए 40, गुडविल के 28 आ गए 68। तो बैंक कैश अकाउंट का डेबिट का टोटल कितना है? 68,000। क्रेडिट का टोटल क्या है? 0, क्योंकि क्रेडिट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इन दोनों में कौन सा टोटल हाईएस्ट है? 68,000। सो 68,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, 68,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। बाई बैलेंस C/D 68,000, the same will be brought down on opposite side as to balance brought down 68,000। अब यहाँ से सिंपल टेक्निक क्या करना है? सुबह के अकाउंट में शाम का नाम लिखे, शाम के अकाउंट में सुबह का नाम लिखना है। दिन के अकाउंट में रात का नाम लिखे, रात के अकाउंट में दिन का नाम लिखना है। आज के अकाउंट में कल का नाम लिखे,
कल के अकाउंट में आज का नाम लिखना है। कैश के अकाउंट में एंथोनी कैपिटल का नाम लिखे, एंथोनी कैपिटल के अकाउंट में कैश का नाम लिखना है। कैश के अकाउंट में गुडविल का नाम लिखे, गुडविल के अकाउंट में कैश का नाम लिखना है। इधर डेबिट में लिखे, उधर क्रेडिट में लिखना है। तो फर्स्ट कैश के अकाउंट में एंथोनी कैपिटल 35,000 लिखे थे, अब एंथोनी कैपिटल में बाई कैश 35,000 लिखेंगे। सो एंथोनी कैपिटल में आकर लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 35,000, बाई कैश अकाउंट 35,000। उसी तरह कैश के अकाउंट में गुडविल का नाम लिखे थे, टू गुडविल अकाउंट 28,000। तो कैश के अकाउंट में गुडविल का नाम लिखे, गुडविल के अकाउंट में कैश का नाम लिखेंगे। इधर डेबिट में लिखे थे, इधर क्रेडिट में लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 28,000। तो नया पार्टनर अपने साथ कौन से पैसे लाता? कैपिटल और गुडविल। कैपिटल का पैसा क्या करेंगे? जैसा पुराने पार्टनर्स का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करे थे, उसी तरह नए पार्टनर का कैपिटल भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। गुडविल का पैसा क्या करेंगे? It will be distributed among old partners Amar and Akbar in their sacrificing ratio. Sacrificing ratio कब मालूम करेंगे? When the question specifies you with old ratio and new ratio. जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 8, 9 और 10 में स्पेसिफाई करा हुआ है। ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है। बाकी के प्रॉब्लम्स में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो स्पेसिफाई करा हुआ नहीं है। तब यहाँ पे ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नहीं है, तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो मालूम नहीं कर रहे। तब क्या करेंगे? जो भी वो लोगों का ओल्ड रेशियो है उसी को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो समझ के वो गुडविल का अमाउंट बांट देंगे। तब यहाँ पे ये लोगों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है? 4:3। 4+3 क्या होता है? 7। तो 28,000 के 7 हिस्से करेंगे, तो 4 7 28। एक हिस्सा 4,000 का आता। अमर के 4 हिस्से है, तो अमर को 4,000 4 बार मिलेंगे। 4 4 8, 4 4 8, 8 8 16। तो टू अमर कैपिटल 16,000। अकबर के 3 हिस्से है, तो 4 4 8 4 12। तो अकबर कैपिटल 12,000। अब सेम पॉइंट अप्लाई करेंगे। संडे के अकाउंट में मंडे का नाम लिखे, मंडे के अकाउंट में संडे का नाम लिखेंगे। टॉम के अकाउंट में जेरी का नाम लिखे, जेरी के अकाउंट में टॉम का नाम लिखेंगे। गुडविल के अकाउंट में अमर और अकबर का नाम लिखे, अमर और अकबर के अकाउंट में गुडविल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बाई गुडविल 16,000 अमर के लिए, 12,000 अकबर के लिए। इसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करके लिखते थे। तब वो चीज रिवैल्यूएशन के डेबिट में पार्टनर्स के नाम आते थे, तो पार्टनर्स के क्रेडिट में बाई रिवैल्यूएशन लिखते थे। बट इस बार अपने को रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट नहीं, लॉस हुआ। तब हम डेबिट में लिखने के बजाय क्रेडिट में लिखे बाई लॉस ट्रांसफर टू अमर कैपिटल 400, अकबर कैपिटल 300। तो अब रिवैल्यूएशन के अकाउंट में अमर और अकबर का नाम आया, तो अमर और अकबर के अकाउंट में रिवैल्यूएशन का नाम आएगा। इधर क्रेडिट में आया तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा टू रिवैल्यूएशन करके। अमर के अकाउंट में 400 रुपए, अकबर के अकाउंट में 300 रुपए। इसका मतलब क्या? ये लॉस के पैसे है। तो जो भी टोटल आएगा अमर का, उसमें से 400 माइनस करेंगे और कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करेंगे। जो भी टोटल आएगा अकबर का, उसमें से 300 माइनस करेंगे और कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करेंगे। देन रिवैल्यूएशन के बाद दो चीजें ऐसे रहते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं देता। क्या है वो दो चीजें? जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जनरल रिजर्व्स अपने को हमेशा क्वेश्चन में किधर देता? लायबिलिटी में देता। तो लायबिलिटी में चेक करिए, जनरल रिजर्व्स 14,000 है। तो ये रिजर्व्स कौन मेंटेन करे? पुराने पार्टनर्स मेंटेन करे। तो कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सो 14,000 when divided into 7 shares, the value of each share will be 2,000. Amar has 4 shares, so he'll be getting 8,000. Akbar has 3 shares, so he'll be getting 6,000. पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे हम बाई जनरल रिजर्व 8,000 अमर के, 6,000 अकबर के। फिर जनरल रिजर्व के बाद और एक नाम क्या रहता? प्रॉफिट एंड लॉस। ये चीज अपने को लायबिलिटी में भी मिल सकती, असेट्स में भी मिल सकती। अगर लायबिलिटी में दिया हुआ है तो ये पुराने प्रॉफिट्स है, अगर असेट्स में दिया हुआ है तो ये पुराने लॉसेस है। बट अपने को ना लायबिलिटी में पूछा प्रॉफिट एंड लॉस, ना असेट्स में पूछा। नाउ विल बी बैलेंसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका टोटल करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में टोटल देखिए, अमर का टोटल 40,000 प्लस 16,000 प्लस 8, 16 प्लस 8 24, 40 प्लस 24 64,000। डेबिट में 400। तो कौन सा टोटल ज्यादा है? 64 ज्यादा है, तो दोनों तरफ टोटल 64 64 लिख दिए। अब 64 में से 400 का रिवैल्यूएशन का लॉस माइनस कर दिए, तो क्या बच रहे? 63,600 विच विल बी शोन एज टू बैलेंस सी बाई डी, एंड द सेम विल बी शोन ऑन अपोजिट साइड एज बाई बैलेंस बी बाई डी, 63,600। अकबर का टोटल देखिए 30, 12 प्लस 6 18, 30 प्लस 18 48। डेबिट का टोटल है 300, तो दोनों में 48 ज्यादा है, तो 48 विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ अकबर अकाउंट, 48,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ अकबर अकाउंट।
48,000 में से 300 निकाल दिए तो क्या बचते 47,700, which will be shown as 2 balance C by D 47,700. The same will be shown on opposite side as by balance B by D 47,700. फिर एंथोनी का कैपिटल 35,000, 35,000 दोनों तरफ लिख के क्या करेंगे, कैरी डाउन 35,000, अपोजिट में ब्रॉट डाउन 35,000। अब नई बैलेंस शीट बनाएंगे। नई बैलेंस शीट की हेडिंग क्या आएंगी, न्यू बैलेंस शीट ऑफ अमर अकबर एंथनी एज ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड द फॉर्मेट विल बी लायबिलिटीज अमाउंट रुपीज, असेट्स अमाउंट रुपीज। तो लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल्स बताएंगे। अमर के पास कैपिटल कितना था, 64,000 हो गया था। ऐसा हुआ 64, 40,000 वो बंदा इन्वेस्ट करा, सो उसके बाद गुडविल में 16,000 मिले, जनरल रिजर्व में 8,000 मिले। बट ये 64,000 में क्या हुआ, रिवैल्यूएशन के 400 रुपए लॉस कम हो गए। तब वो बंदे के पास कितने पैसे हैं, 63,600। उसी तरह अकबर के पास 48,000 थे, बट रिवैल्यूएशन के लॉस के 300 रुपए माइनस कर दिए तो क्या बचे 47,700। एंथनी के 35। सो दीज थ्री अमाउंट 63,600 विल बी शोन फॉर अमर, 47,700 विल बी शोन फॉर अकबर, 35 विल बी शोन फॉर एंथनी। सो कैपिटल्स अमर 63,600, अकबर 47,700, एंथनी 35,000। अब पार्टनर्स कैपिटल के बाद आगे की चीजें क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000, इसको हम कुछ भी नहीं करें तो जैसा है वैसा नई बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में बताएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000। देन आफ्टर सन्ड्री क्रेडिटर्स वी हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000, इसको भी हम कुछ नहीं करें तो नई बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जैसा है वैसा बताएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000। देन वी हैव जनरल रिजर्व 14,000, ये हम पुराने पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दिए थे तो ये चीज नई बैलेंस शीट के लायबिलिटी में नहीं बताएंगे। नाउ कमिंग टू असेट्स, असेट्स में कैश 5,000 है, ये नया बंदा आने से पहले का अमाउंट है। बट अब नया बंदा आने के बाद ये लोगों के पास कितने पैसे हैं, 68,000 है। तो नई बैलेंस शीट में कैश कितना बताएंगे, 68,000। सो कैश 68,000। देन वी हैव बिल्स रिसीवेबल 12,000, इसको हम कुछ नहीं करें तो नई बैलेंस शीट के एसेट्स में जैसा है वैसा बताएंगे, बिल्स रिसीवेबल 12,000। देन वी हैव डेप्टार्स 28,000, जिसपे अपने को 1,300 रुपए कुछ प्रोविजन निकालना है, बैड डेट्स निकालना है। सो डेप्टार्स 28,000 माइनस बैड डेट्स 1,300, 28 माइनस 127 माइनस 300, 26,700। देन डेप्टार्स के बाद वी हैव स्टॉक 24,000, जिसपे अपने को डेप्रिसिएशन करना है। स्टॉक 24,000 माइनस डेप्रिसिएशन 10%, 2,400, 24 माइनस 2 22 माइनस 400, 21,600। देन वी हैव मशीनरी 25,000, मशीनरी पे भी अपने को जो है ना डेप्रिसिएशन था 2,000। सो मशीनरी 25,000 माइनस डेप्रिसिएशन 2,000 बिकम्स 23,000। देन वी हैव लैंड, जमीन की वैल्यू क्या थी, 15,000 थी, उसको क्या करना था, 20,000 करना था। तो लैंड 15,000 प्लस अप्रिसिएशन 5,000, 20,000। Now doing the total for balance sheet. The total on liability side is 1,71,300 as well as the total on asset side is also 1,71,300. Hope you have understood the topic. See you all in next video. Thank you.